آداب، یہ اعتماد کی خبریں سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ شیخ حسینہ کا سفارتی پاسپورٹ منسوخ، بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا فیصلہ۔ نریندر مودی یوکرین پہنچ گئے، مہاتما گاندھی کو پیش کیا خراج۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی دہلی کے دورے پر مصروف، مرکز سے ٹی فائبر کو بھارت نیٹ فیس 2 اسکیم میں شامل کرنے کی خواہش۔ تلنگانہ کے NRI کا سعودی عرب کے صحرا میں انتقال، میت نماز کی قالین پر دستیاب۔ سڑک پر پیسے اڑانے والا یوٹیوبر گرفتار، حیدرآباد کی کوکٹ پلی پولیس کی کارروائی۔ حیدرآباد میں بارش کے دوران عجیب و غریب واقعہ، تلنگانہ میں اگلے 48 گھنٹوں تک بارش کی پیش قیاسی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے رواں ماہ معزول کی گئی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا سفارتی پاسپورٹ منسوخ کر دیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق حسینہ واجد کی دستاویز کو منسوخ کرنے کا قدم ایک ایسے موقع پر اٹھایا گیا ہے جب اقوام متحدہ کی ٹیم گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ہونے والے احتجاج میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے ڈھاکہ پہنچی۔ ملک میں عبوری حکومت کے اقتدار پر آنے سے قبل چند ہفتوں کے دوران ہونے والے احتجاج کے دوران 450 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور پھر سول نافرمانی تحریک کے بعد مشتعل ہجوم نے ڈھاکہ میں حسینہ واجد کی سرکاری رہائش گاہ پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے بعد انہیں معزول کر کے 15 سالہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ حسینہ واجد کے ساتھ ساتھ سابق حکومتی وزراء اور سابق قانون سازوں کے پاسپورٹس بھی منسوخ کر دیے جائیں گے۔ شیخ حسینہ کے پاسپورٹ کی منسوخی ان کے موجودہ میزبان اور خطے کی بڑی طاقت بھارت کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے، جہاں حسینہ واجد نے ملک سے فرار ہونے کے بعد پناہ حاصل کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی یوکرین کے اپنے دورے پر جمعہ کی صبح کیف پہنچے اور دن کے وقت SS آف پیس پارک میں مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں لکھا، مہاتما کے امن کے ابدی پیغام کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کیف کے SS آف پیس پارک میں مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جیسوال نے کہا کہ وزیر اعظم نے ایک ہم آہنگ معاشرے کی تعمیر اور موجودہ عالمی چیلنجز کا حل تلاش کرنے میں مہاتما کے امن کے ابدی پیغام کی مطابقت کو اجاگر کیا۔ قبل ازیں مودی یہاں پہنچے تو ہندوستانی برادری کے لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بھی مودی سے ملاقات کی۔ یوکرین کے صدر نے وزیر اعظم کو یوکرین کے قومی تاریخی میوزیم میں بچوں سے متعلق ملٹی میڈیا مارٹولوجسٹ نمائش کا دورہ کروایا۔ وزارت خارجہ کے مطابق مودی تنازع میں اپنی جان گنوانے والے بچوں کی یاد میں لگائی گئی نمائش سے بہت متاثر ہوئے۔ نریندر مودی نے جاری تنازع میں نوجوان جانوں کے المناک نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور ان کی یاد میں ایک کھلونا تعظیم کے طور پر رکھا۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے خلائی فضلے کو خلائی مشینوں کے لیے ایک مسئلہ قرار دیتے ہوئے جمعہ کو کہا کہ ہندوستان 2030 تک اپنے تمام خلائی مشنوں کو کچرے سے پاک بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صدر جمہوریہ نے جمعہ کو بھارت منڈپم میں پہلے قومی خلائی دن کی تقریبات میں شرکت کی۔ قومی خلائی دن گزشتہ سال 23 اگست کو چاند کی سطح پر وکرم لینڈر کی کامیاب لینڈنگ کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر دروپدی مرمو نے روبوٹکس چیلنج اور انڈین اسپیس ہیکاتھون کے فاتحین کو ایوارڈز پیش کیے۔ اپنے प्रारंभिक दिनों के अब तक इसरो की यात्रा शानदार रही है। इसरो ने स्पेस सेक्टर में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। जैसा कि यहाँ उपस्थित वैज्ञानिक समुदाय के लोग जानते ही है कि 1-2 दिन पहले ही चंद्रयान की प्रज्ञान सेवर से प्राप्त जानकारी से ये धारणा मजबूत हुई है कि आरंभ में चंद्रमा पूरी तरह मैग्मा का महासागर था और धीरे धीरे शीतल होते हुए वर्तमान स्वरूप की तरफ बढ़ा। इसे वैज्ञानिक भाषा में लूनार मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस कहते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि भविष्य में इसरो द्वारा चंद्रमा के अध्ययन के लिए अन्य मिशन की भी योजनाएं है।
मैं संपूर्ण इसरो परिवार तथा विशेषकर चंद्रमा मिशन के से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सैयाहों को ले जाने वाली एक बस नेपाल की मर्सियान गड्डी नदी में गिर गई। बस में 40 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 14 की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। 31 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। बस नेपाल के पोखरा से खटमंडू जा रही थी। सुबह 11:30 बजे हाईवे से तकरीबन 500 फीट नीचे दरिया में ये बस गिर पड़ी। बस में सफर करने वाले ज्यादातर मुसाफिरीन का ताल्लुक महाराष्ट्र से था। दिल्ली की तिहाड़ जेल में महरूज रुकने काउंसिल कविता से आज पार्टी के कायदीन हरीश राव और बीआरएस रुकने राज्यसभा रविचंद्रा ने मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज कविता की जेल में तबीयत बिगड़ गई थी, जिस पर उन्हें एम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए मुख्तलिफ तिब्बी मायने करवाए गए थे। बादशाह जेल मुंतकिल कर दिया गया। हरीश राव और रविचंद्रा ने कविता से मुलाकात करते हुए उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और उन्हें हिम्मत से काम लेने का मशवरा दिया। बताया गया है कि दिल्ली शराब मामले में कविता जारिया साल मार्च से दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत की दरख्वास्त पर 27 अगस्त को समाअत होने वाली है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने मशहूर सनतकार अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस और HFL के आला ओहदेदारों समेत 24 दीगर अफराद और कंपनियों पर सिक्योरिटी मार्केट में कारोबार करने पर पाबंदी आयद कर दी है। सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद करते हुए उन्हें किसी भी फेरिस्तबंद कंपनी में डायरेक्टर, कलीदी इंतजामी ओहदेदार या मार्केट रेगुलेटर के साथ दर्ज किसी भी दलाल के तौर पर काम करने पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। सेबी की जानिब से जारी करदा 222 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली हुक्मनामे में इंकशाफ किया गया है कि अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस के आला इंतजामी अहलकारों की मदद से इनकी वाबस्ता इदारों के कर्ज के तौर पर खुफिया तौर पर पैसे निकालने की साजिश की थी। इस धांधली की कार्रवाई में अनिल अंबानी और उनकी कंपनी ने गैर कानूनी तौर पर पैसा मुंतकिल किया, जिससे मार्केट की शफाफियत और सरमायाकारों के हुकूक मुतासिर हुए। सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस पर भी सख्त कदम उठाते हुए इसे सिक्योरिटी मार्केट से 6 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी है और कंपनी पर 6 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। ये पाबंदी कंपनी की मालियाती सरगर्मियों की निगरानी और इसके गैर कानूनी अमाल को रोकने के लिए लगाई गई है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे दिल्ली के मौके पर सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। जराये के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने नए PCC सदर के इंतखाब और रियासती काबीना में तौसी और रद्दुबदल के अलावा ज़ेर इल्तवा नामजद ओहदों पर भर्ती के सिलसिले में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। बताया गया है कि PCC के नए सदर के इंतखाब और काबीना में तौसी के मामले में साबिक में मुतादिद मरतबा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खड़गे और राहुल गांधी से तबादला ख्याल किया था। ताम पार्टी के अहम कायदीन बिलखसूस दीगर वज़रा के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा न होने की वजह से उसे इल्तिवा में रख दिया गया था। ज़राए ने बताया कि फिलवक्त काबीना में मजीद 6 अरकान को शामिल करने की गुंजाइश है। ताहम अनकरीब होने वाली काबीना में 4 अरकान को शामिल करने का चीफ मिनिस्टर मंसूबा रखते हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने आज रियासत की कांग्रेस हुकूमत को इंतबाह दिया है कि वो इनके सब्र का इम्तिहान ना ले। अगर सब्र का इम्तिहान लेते हैं तो कार्रवाई की जवाबी कार्रवाई भी होगी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कहा कि इख्तिदार किसी के लिए भी मुस्तकिल नहीं रहता, इस बात को जहन में रखना चाहिए। तारक रामाराव ने बीआरएस कारकुनों पर कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों के हमलों और पुलिस की खामोशी के खिलाफ आज रियासत के डीजीपी जितेंद्र से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की। डीजीपी से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि गुज़िश्ता रोज एक ही दिन में 2 वाक़यात पेश आए। इससे मुताल्लिक़ शवाहिद डीजीपी को पेश किए गए। उन्होंने कहा कि तुंगा तुर्ती के साबिक़ रुकन असम्बली
और स्टूडेंट लीडर जी किशोर की क़यादत में गुज़िश्ता रोज़ जमहूरी अंदाज में ज़र कर्ज की माफ़ी का मुतालबा करते हुए तिरुमलगिरी में किसानों के साथ एक रोज़ा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की गई थी, लेकिन कांग्रेस से 50 से ज़ायद कायदीन और कारकुन नशे की हालत में भूख हड़ताल के मुकाम पर पहुंचे और पथराव किया। सुतली बम फेंकने और अंडे भी बरसाने का इल्ज़ाम आयद किया गया। इन्होंने कहा कि इस वक्त अगर बीआरएस के कायदीन और कारकुन जवाब देते तो हमला करने वाले 50 कांग्रेस के कायदीन और कारकुन बुरी तरह जख्मी हो जाते, लेकिन बीआरएस के कायदीन ने सब्र का मुजाहरा किया और उसका जवाब नहीं दिया। తమ్ముడు గ్యాదర్ కిషోర్ గారి నాయకత్వంలో ఆ నియోజకవర్గ రైతాంగం ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో దాదాపు ఒక 500-600 మంది గుమిగూడి శాంతియుతంగా ట్రాఫిక్ కి అంతరాయం కాకుండా ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టకుండా కేవలం నిరసన చెప్పే క్రమంలో తమ కార్యక్రమం తాము నిర్వహిస్తా ఉన్నారు. 50 మంది కిరాయి మూకలు కాంగ్రెస్ గూండాలు తాగిన మత్తులో అక్కడ స్థానిక పోలీస్ యంత్రాంగంతో కుమ్మక్కై ఆ నిరసన శిబిరం మీద దాడి చేసి ఆకస్మికంగా సుతిల్ బాంబులేసి గుడ్లు చెప్పులు రాళ్లు కొట్టి హింసాయుత వాతావరణాన్ని కల్పించే ప్రయత్నం చేసినారు. మా వాళ్ళు నిజానికి గనక తిరగబడితే నిన్న 50 మంది కాంగ్రెస్ మూకలో కాంగ్రెస్ గూండాలలో ఒక్కడు కూడా మిగిలేటోడు కాదు. కానీ హింస ప్రజాస్వామ్యంలో హింస సమాధానం కాదు కాబట్టే మా వాళ్ళు గమ్మున ఉన్నారు. నిన్న దుర్మార్గం ఏంటంటే పోలీసు వాళ్ళు స్వయంగా స్థానిక పోలీసులు ఆ నిరసన శిబిరం యొక్క టెంట్లు కూడా వాళ్ళు కూల్చేసి ఆ గూండాలకు వత్తాసు పలకడం ఏదైతే ఉందో ఇది రాష్ట్రంలో నడుస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి అనే ఒక పిరికి పంద పరిపాలనకు ఇది సంకేతంగా నిదర్శనంగా మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर मवासलात ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। दिल्ली में भी इस मुलाकात के मौके पर चीफ मिनिस्टर के हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का भी मौजूद थे। जराये के मुताबिक मरकजी वजीर से मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने टी फाइबर प्रोजेक्ट को भारत नेट फेज 3 स्कीम में शामिल करने की दरख्वास्त की। बादजा मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना के हर गांव और मंडल में इंटरनेट नेटवर्क फराहम करना ही टी फाइबर प्रोजेक्ट का अहम मकसद है। उन्होंने कहा कि रियासत के 65,000 सरकारी दफातर को G2G G2C खिदमात फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने बीआरएस लीडर तारक रामाराव के इस इल्ज़ाम को हक़ाइक़ से बईद करार दिया कि इनका फार्म हाउस गैर मजाज तौर पर तामीर किया गया है। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि अगर इनका फार्म हाउस गैर मजाज तौर पर तामीर किया गया है तो इसे फौरी मुनहदम करने की हाइड्रा के कमिश्नर को वो हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर इनका फार्म हाउस गैर कानूनी है तो ऐसी सूरत में उहदेदारों के बजाय बीआरएस के कायदीन ही इस फार्म हाउस को मुनहदम कर दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एक अच्छे मकसद के लिए हाइड्रा की तश्कील अमल में लाई है। एफटीएल और बफर जोन के दायरे में तामीराती कामों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसी तामीरात को मुनहदम कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेशरो बीआरएस हुकूमत के दौर में इस तरह की तामीरात हुई थीं। उन्होंने कहा कि हिमायत सागर के इलाके में एफटीएल के दायरे में इनका फार्म हाउस पाए जाने की बीआरएस कायदीन गलत तशहीर कर रहे हैं। हिमायत सागर बफर जोन లో ఉంది, రెవెన్యూ మంత్రి ఇల్లు ఎట్లుంది అట్లుంది అని ఆనాటి ఎంఐయుడి మినిస్టర్ గారు వారి తొత్తులు ఇతరత్రా మాట్లాడుతున్నారు. నేను ఈ వేదిక ద్వారా ఒకటే ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నాను. మీరు ఎంఐయుడి మినిస్టర్ గా సుమారు 6-7 సంవత్సరాలు పనిచేశారు. మీ బావ హరీష్ రావు గారు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా 5 సంవత్సరాలు పైచిలకు పనిచేశారు. ఈ వేదిక మీద నుంచి హైడ్రా అధికారి రంగనాథ్ గారిని ఆదేశిస్తున్నాను. ఈ ఇద్దరు మాజీ మంత్రులు అంటే ఒకరు ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రివర్యులు, రెండోవారు ఎంఐయుడి మంత్రివారు, వీరికి డబ్బాలు కొట్టే కొన్ని యూట్యూబులు వారికి సంబంధించిన సంస్థలు వ్యవస్థలు
మీరు ఎంతమంది వస్తున్నారో అంతమందిని ఎంట పెట్టుకొని రంగనాథ్ గారు నేను ఇక్కడ నుంచి మిమ్మల్ని ఆదేశిస్తున్నాను, రేపు వెళ్తారా ఎల్లుండి వెళ్తారా, వాళ్ళని ఒక కొత్త టేబు కొనుక్కొని రమ్మనండి. టేబు కొనుక్కొచ్చి నా ఇల్లు FTL లో ఉన్న బఫర్ జోన్ లో ఉన్న చివరికి ఒక ఇటుక పెట్ట ఉన్నా ఎమ్మటే పడగొట్టండి. ఇల్లు మొత్తం దాంట్లో ఉంటే ఇల్లు మొత్తం పడగొట్టండి. దిస్ ఈజ్ మై ఛాలెంజ్, పొంగలేటి ఛాలెంజ్. निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस निम्स के अलावा तेलंगाना के तमाम सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल्स के जूनियर डॉक्टर्स ने आउट पेशेंट, मुंतखबा सर्जरीज और तालीमी सरगर्मियों का अपना गैर माना मुद्दत का बाइकाट जारी रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तालिबा की इस्मत रेज़ कत्ल मामले के आइंदा इयादा न होने को यकीनी बनाने के सिलसिले में तहरीरी तहक़्क़ुन तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। जूनियर डॉक्टर्स और सीनियर रेजिडेंट्स की नुमाइंदगी करने वाली कौमी सतह की कई एसोसिएशनों ने हालांकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और तहक़्क़ुनात के बाद जुमेरात को अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया। ताहम तेलंगाना में मेडिकोस और रेजिडेंट डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है, जो रियासत में सरकारी दवाखानों में इनकी सलामती के लिए जामे इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं। तेलंगाना में वबाई अमराज के इजाफे के दरमियान हालांकि मंकी पॉक्स का एक भी मुस्बित केस सामने नहीं आया, ताहम महकमे सेहत ने इस ताल्लुक से इम्कानी सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। जहां दो अहम सरकारी दवाखानों में फीवर और गांधी हॉस्पिटल में इस सिलसिले में अलहदा सहूलतें कायम की गई हैं। महकमे सेहत के एक ज़राए ने जुमा को बताया कि वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो वबाई अमराज के साथ इम्कानी मंकी पॉक्स के मुस्बित मामलों से निमटने के लिए भी तैयार रहें। रियासत में ताहाल मंकी पॉक्स का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ, ताहम अगर कोई केस सामने आ जाता है तो फौरी तौर पर इसे अलहदा रखना होगा, जिसके लिए इंतजामात की वज़ीर सेहत ने हिदायत दी। तेलंगाना के एक NRI की सऊदी अरब के वसी जुनूबी सहरा में खो जाने की वजह से सूरज की तपिश, पानी की कमी और थकन की वजह से इंतकाल हो गया। वाज़ेह है कि सहरा मशरिक़ी सूबे में काली क्वार्टर या रब्बुल कलाकी के नाम से जाना जाता है। मरहूम की शनाख्त 27 साल मोहम्मद शहजाद खान के तौर पर की गई है, जो करीमनगर के रहने वाले बताए गए हैं। यह अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब खान GPS सिग्नल खो बैठे और इसके फ़ौरन बाद इनके मोबाइल फ़ोन की बैटरी और फिर इनकी गाड़ी में ईंधन ख़त्म हो गया, जिससे वो तकरीबन 4 दिन तक सहरा में फंसे रहे। इनकी नाश जुमेरात को इनकी गाड़ी के साथ रेत के टीलों में नमाजी कालीन पर मिली। नमाजी कालीन पर पड़ी नाश का दिल दहला देने वाला मंजर इस बात की निशानदेही करता है कि वो जिंदा रहने की उम्मीदें खो चुके थे और दुआएं मांग रहे थे। ज़राए के मुताबिक शहजाद गुज़िश्ता 3 साल से सऊदी अरब में टेली कम्युनिकेशन मेंटेनेंस कंपनी में काम कर रहे थे। और अब मौसम। हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के बाज़ इलाकों में बारिश और चंद इलाकों में धूप भी देखी जा रही है, लेकिन जुमेरात को शहर के मुरादनगर में अजीबोगरीब बारिश देखी गई, जहां एक सड़क पर सिर्फ 6 फीट के अहाते में बारिश हुई, जबकि 6 फीट सड़क के दोनों तरफ धूप थी। इसे देखकर सड़क पर चलने वाले लोग हैरत ज़दा रह गए। मखसूस इलाके में बारिश का सिलसिला चंद मिनट तक जारी रहा। अवाम की कसीर तादाद इस मंजर को देखने के लिए सड़क की दोनों जानिब जमा हो गई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला, निर्मल, निजामाबाद, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। जुमा को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक इस किस्म की सूरत हाल इम्कान है हफ्ते को अजला, आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, वनपर्ती और नारायणपेट में भी बरकरार रह सकती है। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना में ज्यादातर अजला में चंद मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशकयासी की गई है। सोशल मीडिया पर अपनी शनाख्त बनाने के लिए अवाम के दरमियान रकम उछालने वाले यूट्यूबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुकटपल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई अंजाम दी। मुलजिम की शनाख्त 24 साला वंशी पवार के तौर पर की गई है, जो मोती नगर का रहने वाला बताया गया है। उसने इंस्टाग्राम पर
अकाउंट बनाते हुए कई मर्तबा वीडियोस पोस्ट किए। हाल ही में वो पब्लिक के बीच में रकम उड़ाता हुआ नजर आया। उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोग उसके ऊपर तनकीदें कर रहे थे। बिलाखिर पुलिस ने उसके खिलाफ असखुद मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके दुंडिगल में एक खातून की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। कत्ल का शुबा किया जा रहा है। 35 साला खातून शांताबाई दुंडिगल के तांडा 2 में अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। उसकी नाश मुश्तबा हालत में उसके मकान में दस्तयाब हुई। शुबा किया जाता है कि किसी ने उस पर हमला करके कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही डीसीपी कोटी रेड्डी ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। खातून के सर पर गहरे जख्म का निशान पाया गया है, जिसकी वजह से शुबा किया जाता है कि किसी ने सर पर वजनी शय से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ जावियों से छानबीन शुरू कर दी है। शेख हसीना का सिफारती पासपोर्ट मनसूख, बांग्लादेश की बुरी हुकूमत का फैसला। नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंच गए, महात्मा गांधी को पेश किया खराज। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी दिल्ली के दौरे पर मसरूफ। मरकज से टी फाइबर को भारत नेट फेस 2 स्कीम में शामिल करने की ख्वाहिश। तेलंगाना के एनआरआई का सऊदी अरब के सहरा में इंतकाल, मैयत नमाज की कालीन पर दस्तयाब। सड़क पर पैसे उड़ाने वाला यूट्यूबर गिरफ्तार, हैदराबाद की कुकटपल्ली पुलिस की कार्रवाई। हैदराबाद में बारिश के दौरान अजीबोगरीब वाकया, तेलंगाना में अगले 48 घंटों तक बारिश की पेश कयासी। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।